Very good evening. Bhagavat. Okay. Okay. Hello everyone. Good evening to all. Let me know in the chat box whether my voice is clearly audible to you all or not, and also my screen is visible clearly or not. Yes, everything is okay. Shall I start the class? Everyone, I'm asking. Respond to the chat box. वॉइस सुनाई दे रहा है कि नहीं ये बता दो भाई. यस. मनीष, मारवी, उदय, आबुजर, अंसारी. Okay. Done. चल. So we are continuing our chapter, that is application of derivative, and this is the second lecture, right? Okay. So let's start. What we are going to cover in this session. First we'll see, already we have covered how to find the equation of tangent at a point, how to find the equation of normal at a point. So today we'll learn how to find the equation of tangent and normal from an external point, right? So external point means वो इंटीरियर पॉइंट हो सकता है या क्या बाहर की पॉइंट हो सकता है, आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइडर पॉइंट हो सकता है. तो कर्व के ऊपर वो पॉइंट नहीं होगा, ठीक है. तो उस पॉइंट से हम टेंजेंट की इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो चीज को पढ़ेंगे. एंड नेक्स्ट इज विल लर्न हाउ टू फाइंड द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, है ना. तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को यूज करके हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे. ओके, दैट्स. एंड नेक्स्ट lastly finally we'll see what is the angle of intersection. So how we can find angle between two curves, right? And also then next in that session also we'll see what are the orthogonal curves, right? Orthogonal curve. Okay, so let's start. All of you know how to find the equation of normal and equation of tangent. Can you tell me, everyone in the chat box, equation, how we can write the equation of tangent at point P, x1, y1? Agar if equation, if the tangent is having the slope m1, अगर वो टेंजेंट की स्लोप m है, m1 है, सपोज m1 है, ठीक है, तो वो टेंजेंट की इक्वेशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. ये ऑलरेडी ये चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बता दो मुझे, बोलो बोलो. यस. अगर वो इक्वेशन टेंजेंट की स्लोप m1 है एंड वो पॉइंट, एक पॉइंट में कर्व की एक पॉइंट दिया है तुम्हें, दैट इज p, उस कोऑर्डिनेट इज x1 by 1, तो वो पॉइंट p में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा अगर स्लोप m1 है तो. सो व्हिच फॉर्म ऑफ लाइन विल यूज हियर? टेल मी इन द चैट बॉक्स एवरीवन. ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस वन. यस गाइस. भगवत, हार्दिक, JNB भावनगर, JNB क्लास 12, कौशिक, महक, मनीष, मारवी, एनीवन? कोई भी एक कर्व दिया है तुम्हें एंड वो पॉइंट दिया है, दैट पॉइंट इज P, एंड इस पॉइंट में ना हमारे पास एक टेंजेंट है, सपोज दिस इज योर टेंजेंट, एंड ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप दिया है मुझे m1, ठीक है. एंड P का कोऑर्डिनेट क्या दिया है ना, x1 y1. ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे हम, ठीक है ना. वी यूज द स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1, है ना. तो ये फॉर्म को यूज करके हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड कर सकते हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑल ऑफ यू नो product of the slopes of normal and tangent is -1, because angle between them is 90 degree. Yes or no?
समझ में आ रहा है कि ये मेरा नॉर्मल नॉर्मल कैसे होगा? नॉर्मल विल बी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, normal will be passing through that point P, and it will be what? It will be perpendicular to the tangent. Is that clear or not? है कि नहीं? Okay. तो slope अगर m1, if the slope of tangent is m1, then slope of normal क्या हो जाएगा? ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. Slope of normal क्या हो जाएगा? That is -1 upon m1. So equation of normal क्या हो जाएगा? Equation of normal will be, बोलो, equation of normal क्या हो जाएगा? The passing through the point P. Normal is also passing through the point P whose coordinate is x1, y1. Right? So y minus y1 is equal to slope into x minus x. Yes or no? So this is the way to find the slope of a equation of tangent to a curve at a point. Right? Okay, let's move. Now, here in the screen already we have solved this question, right? ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं. ओके, चलो ये बताओ, टेंजेंट एंड नॉर्मल के स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? और तीन यहाँ पे ना तीन केसेस हैं, है ना? टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड कन्वर्स. अगर क्या होगा, स्लोप क्या हो जाएगा ना, अगर स्लोप जीरो है, इफ dy by dx at the point x1 y1 is equal to 0, then what we are saying? We are saying the equation of tangent, sorry, the slope of the tangent is 0. dy by dx at the point x1 y1 means what? क्या है? ये जीरो है. क्या है? जीरो है. तो इसका मतलब ये है कि जो स्लोप है टेंजेंट की वो जीरो है. अगर स्लोप है टेंजेंट की जीरो, तो लाइन कैसे होगा, टेंजेंट कैसे होगा? टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. समझ में आ रहा है सबको? टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर ये तुम्हारा कर्व है तो ऐसा एक टेंजेंट तुम्हें मिलेगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? हियर इन दिस केस स्लोप इज जीरो. Right? Here everyone. Similarly, अगर if slope is tending to infinity or slope is equal to zero, ठीक है, अगर ये बोल रहा है कि slope is tending to infinity, dy by dx is tending to infinity, slope at the point P, x1 y1, ठीक है. अगर स्लोप जो टेंडिंग टू इंफिनिटी है, दैट मीन्स क्या है? समझ में आ रहा है सबको? क्या है स्लोप? किसका इंफिनिटी होता है? tan of what will be giving you infinity? Tan of what will be giving you infinity? Tan of 90, right? Tan of 90. So tangent is perpendicular to x-axis. Yes or no? Tangent कैसे होगा? Perpendicular to x-axis. So in this case, slope is tending to infinity. है ना? Tending to infinity. ये तो ये वाला केस हो गया. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Tangent is tending to infinity. Is that clear to everyone? I hope this is clear to all. Let me know in the chat box if you have any doubt, guys. Clear? Give me a thumbs up if it is clear to all. है समझ में? भगवत, मारवी, उदय. Okay, ठीक है. Let's move. Now on your screen you have a question. Find the tangent. Find the equation of tangent when x is given as a sin cube t. है ना? x क्या दिया है? a sin cube t. Okay, and y दिया है तुम्हें a cos cube t. Right? And you need to find the equation of tangent at t is equal to pi by 2. है ना? I'm giving you 1 minute for this question. Let's solve this. And your time starts now. जल्दी से सॉल्व करो और बताओ मुझे चैट बॉक्स में क्या हो जाएगा इसका आंसर.
Anyone got the answer, guys? If you got the answer, please write in the chat box what is the answer for this question. Anyone got the answer? Yes. बोलो। अच्छा, क्या दिया है मुझे? चलो देखते सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसमें दिया है x is equal to a sin cube of t, right? And y is equal to a cos cube of t. and पॉइंट क्या दिया है ना, t is equal to पाई बाई 2 में तुम्हें क्या करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करना है, राइट? अगर मैं इस पॉइंट में टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करूं तो ये पॉइंट को मैं सेटिस्फाई करा दूं। ये पॉइंट को अगर यहाँ पे पुट कर दूं, t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पुट कर दूं, तो फिर x क्या मिलेगा? तो साइन ऑफ पाई बाई 2 इज 1, तो x मिल गया y a, एंड y क्या मिला? दैट इज cos ऑफ पाई बाई 2 इज 0, सो 0, राइट? तो पॉइंट मुझे क्या मिला है ना? पॉइंट मिल गया a 0, ठीक है? तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे फिर? स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे? बोलो, स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे टेंजेंट की ना? यहाँ पे अगर मुझे पॉइंट मिला, टेंजेंट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ओके, एंड यू नीड one more information you need, that is the slope. If you have slope of that tangent, then आराम से तुम उसका इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हो, इसका टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसा ना? चलो, तो यहाँ पे ना पैरामेट्रिक जो डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे कर सकते हो, दैट इज dy by dx। स्लोप क्या होता है? dy by dx। तो dy by dx को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे ना? यहाँ पे dx by dt कर लो, फिर dy by, सॉरी, कैसे करोगे, है ना? यहाँ पे करो dy by dt अपन dx by dt। तो dy by dt क्या हो जाएगा? फाइंड आउट करो, dy by dt क्या हो जाएगा तुम्हारा? a cos cube of t, दैट इज a डिफरेंशिएट करो इसको, a 3 cos square of t into derivative of cos x cos t will be what? क्या होगा तुम्हारा? माइनस ऑफ साइन डिवाइडेड बाय dx by dt क्या हो जाएगा? what will be dx by dt ना? a into 3 sin square of t into cos of t। तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा ना? स्लोप ऑफ द इक्वेशन मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा तुम्हें। तो आराम से तुम फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर दो पूरा, ठीक है? तो क्या मिला यहाँ से? साइन टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से साइन टी कैंसिल हो गया, फिर कॉस टी भी कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा क्या है ना? कॉट ऑफ टी माइनस कॉट ऑफ टी बचा है, ठीक है? क्या बचा है मेरे पास? dy by dx you got, that is minus cot of t, ओके? dy by dx तुम्हें ये मिला, ठीक है? dy by dx क्या मिला है मुझे? माइनस cot of t, ओके? सो स्लोप तुम्हें फाइंड आउट करना है, ओके? इक्वेशन जो टेंजेंट की स्लोप तुम्हें फाइंड आउट करना है। ये तो तुम्हें क्या मिला? dy by dx मिल गया। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है? सपोज ये पॉइंट मेरा P है, तो अगर यहाँ पे तुम t इज इक्वल व्हाट पुट करोगे? तुम क्या पुट करोगे पॉइंट P में? आज t इज इक्वल कितना दिया है? t इज इक्वल टू पाई बाई 2 दिया है ना, ठीक है? पाई बाई 2 दिया है, तो पाई बाई 2 में अगर हम फाइंड आउट करेंगे क्या, स्लोप निकालेंगे, तो ये हो जाएगा कितना? स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी कॉट ऑफ पाई बाई 2, दैट इज 0, है ना? तो स्लोप मिल गया और पॉइंट भी तुम्हें पता है ना? स्लोप क्या है? 0 है, एंड पॉइंट क्या मिला है तुम्हें? a0, राइट? सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? सो y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस a। स्लोप क्या है? 0 है, ठीक है? तो इक्वेशन क्या बन गया? y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन गया तुम्हारा ना? y इज इक्वल टू 0, ठीक है? अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू 0 है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें ये पूछूं, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड आउट कर, ठीक है? तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
If yes, can you please write in the chat box if it is clear to all? Yes, it is clear to all. Give me a thumbs up or you can write in the chat box. Then we'll move forward. आया समझ में सबको? उदय, मारवी, मानिस, मेहर, क्रिस, क्लियर, डन। आगे चलें। कोई डाउट है इसमें? कुछ डाउट है इसमें? पूछो। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। डन, चलो ठीक है। So next thing is, now we'll learn some important points on tangent and normal, right? तो टेंजेंट है एक्चुअली कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है वो को हम देखेंगे अभी। कुछ केसेस हैं, तो किस केस में ना स्लोप कैसे क्या होगा। इफ द टेंजेंट, वो बोल रहा है इफ द टेंजेंट्स एट पी whose coordinate is x1 y1 on the curve is equally inclined to the coordinate axis, equally inclined with the coordinate axis, then the slope of those line will be what, प्लस और माइनस वन। कैसे समझ में आ रहा है सबको? मैं ये बता रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ओके। नाउ आई एम टेलिंग यू, इफ यू ड्रॉ some line, those are equally inclined to the coordinate axis, equally inclined to the coordinate axis। अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, ठीक है, these lines are equally inclined with the coordinate axis, मतलब ये जो एंगल होगा, है ना, ये जो एंगल होगा वो एंगल, these angles are equal, ये बोल रहा है, ओके। देन व्हाट आर द स्लोप, ये जो लाइंस है मिलेट में, वो लाइंस की स्लोप क्या हो जाएगा? ये दोनों लाइंस की क्या हो जाएगा स्लोप? ये इसका स्लोप क्या हो जाएगा ना, m1 विल बी व्हाट, स्लोप क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा स्लोप? यहाँ पे स्लोप विल बी -1, है कि नहीं? इसमें क्या हो जाएगा? स्लोप विल बी -1। तो ये दोनों लाइन की स्लोप क्या हो जाएगा ना, m2 विल बी, ये सपोज m2, m3 विल बी, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं? अगर ये लाइंस इक्वली इंक्लाइंड विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन द स्लोप विल बी प्लस और -1। तो स्लोप क्या हो जाएगा? इन चारों लाइंस की जो इक्वेशन होगा ना, अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि कोई भी एक लाइन है, कोई भी एक टेंजेंट है, सपोज कोई भी एक टेंजेंट है व्हिच इज व्हाट, व्हिच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अगर इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये दोनों एंगल अगर सेम है, तो वो लाइन की इक्वेशन आइदर क्या होगा ना, +1 होगा और -1 होगा। दो सिचुएशन आ सकते। समझ में आ रहा है सबको? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर टू ऑल। आया समझ में सबको? गिव मी थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू ऑल। बोलो प्लीज, इज इट क्लियर टू ऑल? मारबी, उदय, okay, come to the next case. If the tangent makes equal non-zero intercept on the coordinate axis, बोल रहा है कि if the tangent makes equal non-zero intercept, equal non-zero intercept on the coordinate axis, then the slope will be -1। तो कैसे फिगर कैसे बनेगा? इस टाइप से होगा, है ना। वो बोल रहा है कि इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट, नॉन जीरो इंटरसेप्ट एंड इक्वल इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए? एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ दैट टेंजेंट शुड बी इक्वल, ठीक है। तो इस केस में देखो, ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है, तो इस लाइन की स्लोप क्या बन जाएगा ना, -1। समझ में आ रहा है? ये बोल रहा है कि ये जो टेंजेंट की इक्वेशन होगा दैट विल बी -1। ओके, समझ में आ रहा है सबको?
क्लियर एवरीवन? तुम बोल सकते हो कि ऐसे होगा सर, ये भी ले सकते हैं हम। नो, व्हाई? बिकॉज हियर यू आर हैविंग द नेगेटिव एक्स इंटरसेप्ट, पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, वो बोल रहा है कि नॉन जीरो इक्वल इंटरसेप्ट अगर लाइन बना रहा है तो वो लाइन की जो स्लोप है वो -1 होगा। तो इस केस में देखो ये नेगेटिव है, स्लोप क्या है, ये यहाँ पे इंटरसेप्ट नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिला, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट इक्वल है, तो स्लोप जो है लाइन की वो हो जाएगा -1। Similarly, the third case is saying if the tangent chords off on the coordinate axis equal distance from the origin, तो फर्स्ट वाला केस हो जाएगा फिर से। if the tangent chords off on the coordinate axis equal distance from origin, that means सेम फिगर बनेगा तुम्हारा जो है थर्ड केस में, सेम फिगर बनेगा जो फर्स्ट वाला केस है ना। वो बोला है कि इक्वली इंक्लाइन है ना फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो ये दोनों केस में क्या हो जाएगा ना, ये जो दो लाइन है इन दोनों लाइन की स्लोप क्या हो जाएगा? ठीक है, स्लोप हो जाएगा -1। और ये केस में और एक केस भी बन सकता है ना, ये केस में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ओरिजिन से अगर लाइंस जो है और टेंजेंट जो है वो दोनों टेंजेंट्स, और अगर वो क्या कर रहे हैं ना ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस में सिचुएटेड है, तो वो लाइन की जो और टेंजेंट की इक्वेशन होगा वो दैट विल, और वो टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगा, आइदर इट इज +1 और -1। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो, है समझ में? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स और गिव मी अ थम्स अप। प्लीज, हार्दिक, मनीष, हार्दिक, इट इज क्लियर टू ऑल, गिव मी अ थम्स अप। यस, चलो, थैंक यू। चलो, लेट्स मूव। लेट्स मूव टू अन क्वेश्चन, है ना। On your screen you have one question and I'm giving you 2 minutes for this question। ठीक है, चलो जेई का पीवाई क्यू का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लो। बोलो, आंसर मिलेगा तो चैट बॉक्स में लिखो आंसर क्या आ जाएगा। Anyone got the answer? Can you please write in the chat box? Who got the answer? Please write in the chat box. Yes, 2 मिनट मिला है भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ओके, चलो, एनीवन गॉट द आंसर?
क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ए कर्व इन द प्लेन इज डिफाइंड बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है ना, पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया है। सो एक्स दिया है मुझे क्या, e टू द पावर 2t प्लस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस टी, एंड y क्या दिया है, y दिया है e टू द पावर 2t प्लस ई टू द पावर t, राइट। ओके, सो ये दिया है तुम्हें पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द प्लेन, कर्व दिया है, ठीक है। एन इक्वेशन फॉर द लाइन टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट t इज इक्वल टू ln2। अच्छा, तो तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, तुम्हें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट t इज इक्वल टू ln2, ठीक है। t इज इक्वल टू ln2 में तुम्हें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, तो पहले तो मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक तो चाहिए पॉइंट बाय व्हिच टेंजेंट शुड पासिंग थ्रू, वो पॉइंट चाहिए। और क्या चाहिए, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की स्लोप मुझे पता होगा, अगर टेंजेंट की स्लोप पता है और एक पॉइंट पे वो जो जिसमें वो जिससे पास कर रहा है वो पॉइंट मुझे पता है, तो आराम से मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, तो पहले तो पॉइंट को निकालते हैं। तो पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, एट टी इज इक्वल टू ln2, तो इसमें ये जो टी इज इक्वल टू ln2 को इस इक्वेशन और दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पहले तो मुझे, मैं अगर x इज इक्वल टू ई टू द पावर 2t प्लस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2 में एट टी इज इक्वल टू ln2 पुट करूं, तो x क्या हो जाएगा ना, x बिकम्स x इज इक्वल टू ई टू द पावर 2 ln2 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस ln2, राइट। समझ में आ रहा है सबको। तो ये बाई यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक, ये 2 क्या आ जाएगा, इसका पावर हो जाएगा ln2 स्क्वायर हो जाएगा, वो e टू द पावर ln4 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा ना, ये जो माइनस साइन है यहाँ पे ये 2 के पावर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। तो ln ऑफ 1/2, तो ये हो जाएगा इंटू 1/2। तो x कितना मिला मुझे ना, x आई गॉट दैट इज 5। तो x मुझे मिला 5, है ना। x क्या मिला मुझे, 5। अभी y को फाइंड आउट करते हैं फिर, है ना। तो y क्या दिया है ना, y इज इक्वल टू ये दिया है e टू द पावर 2t प्लस e टू द पावर t, e टू द पावर 2t प्लस e टू द पावर t, राइट। तो इसमें एट t इज इक्वल टू ln2 पुट करूं, अगर मैं ln2 को सब्स्टिट्यूट करूं यहाँ पे, तो y क्या बन जाएगा ना, y इज इक्वल टू e टू द पावर 2 ln2 प्लस e टू द पावर ln2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 2, समझ में आ रहा है सबको। तो 6, तो y क्या मिला मुझे ना, 6। तो पॉइंट क्या मिला है मुझे ना, पॉइंट आई गॉट दैट इज x कितना मिला है, पॉइंट x की कोऑर्डिनेट क्या मिला है ना, 5, ठीक है। तो 5 6, ये पॉइंट के थ्रू टेंजेंट जा रहा है, मतलब टेंजेंट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। अभी अगर मैं टेंजेंट की स्लोप को निकाल दूं, अगर मुझे टेंजेंट की स्लोप मिल जाए, तो मैं आराम से जो टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकता हूं। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बोलो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की स्लोप कैसे फाइंड आउट करें, टेंजेंट की स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे। y क्या दिया है, y दिया है, देखो y दिया है e टू द पावर 2t प्लस e टू द पावर t, एंड x गिवन है तुम्हें e टू द पावर 2t प्लस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस, ठीक है। तो अभी अगर मैं dy बाई डी एक्स स्लोप फाइंड आउट करूँ ना, तो dy बाई डी एक्स निकालूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू t में, दैट इज dy बाई डी टी अपॉन dx बाई dt, ये फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो इसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या dy बाई डी टी क्या हो जाएगा ना, ई 2 इंटू ई टू द पावर, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर 2t, 2 इंटू ई टू द पावर 2t प्लस ई टू द पावर t डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t में, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर 2t प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस t। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है कि सब, है कि नहीं। तो ये क्या बन जाएगा फिर, अभी t इज इक्वल टू व्हाट, इसमें तुम्हें फाइंड आउट करना है, अरे किस पॉइंट में दिया है मुझे, एल t इज इक्वल टू ln2 दिया है, तो मुझे
अगर मैं t के जगह में अगर इन प्लेस ऑफ t आई विल सब्स्टिट्यूट हियर ln2, तो आराम से मुझे स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सॉरी स्लोप टेंजेंट की मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 इंटू ई टू द पावर 2 ln2 प्लस ई टू द पावर ln2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, 2 इंटू ई टू द पावर 2 ln2 माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस ln2, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, स्लोप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। स्लोप क्या आ जाएगा ना, स्लोप हो जाएगा मेरा क्या, ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा ई टू द पावर ln4, दैट इज 2 इंटू 4 प्लस ये हो जाएगा 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे न्यूमरेटर बिकम्स 10 बाय ये हो जाएगा 7। सो स्लोप मुझे मिला है विथ व्हाट इज दिस, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 10/7। ठीक है, नाउ वी कैन आराम से वी कैन इजीली फाइंड आउट सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट passing through the point 5 6 passing through the point 5 6 and having the slope 10/7। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, दैट इज, अभी करो, y माइनस 6 इज इक्वल टू 10/7 x माइनस 9। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना ना, 7y माइनस 42 इज इक्वल टू 10x माइनस 50। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10x माइनस 7y 10x माइनस 7y माइनस 50 plus 42, that is minus 8 is equal to 0. So this is the equation of tangent, right? This is the required answer. Is that clear to everyone? आया समझ में सबको। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर दिया होगा तो ऐसे हम आराम से उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को निकाल सकते हैं। बोलो, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन इफ इट इज क्लियर टू ऑल। बोलो, अगर ये सबको समझ में आ गया चैट बॉक्स में बताओ मुझे। क्विक, if yes give me a thumbs up, if no, if you have any doubt can you please write in the chat box। अगर कुछ भी डाउट है तो chat box में लिखो। yes give me a thumbs up everyone। बोलो, yeah, class 12 it is clear। Meg, Kosik, Uday, Manish, is that clear to all? तो क्या करना है मुझे, एक्चुअली x मुझे दिया था, y दिया था, तो मैं जो पॉइंट जिस पॉइंट में मुझे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करना था तो वो पॉइंट जो दिया था t इज इक्वल टू ln2 वो x में पुट किया और y में पुट किया तो मुझे पॉइंट मिल गया। पॉइंट मिलने के बाद उसका टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट किया और स्लोप फाइंड आउट करने के बाद मैं आराम से उसका इक्वेशन को फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, ऐसे करना है। ओके, इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, वो पॉइंट अगर वो पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं होगा, ठीक है, अभी जितने सारे क्वेश्चन हम लोग किए हैं वो क्वेश्चन में क्या था ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, दैट मींस वो पॉइंट पे तुम्हें टेंजेंट फाइंड आउट करना था, एंड व्हिच पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व। ठीक है, सारे प्रीवियस केसेस में हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो वो केस में क्या हो रहा है ना, कर्व के ऊपर पॉइंट था तो उस पॉइंट पे मैं टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट कर रहा था। ठीक है, लेकिन इन दिस केस व्हाट विल डू, राइट, क्या क्या करना है तुम्हें इस केस में, क्या करना है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल को कैसे फाइंड आउट करना है ना, एक बाहर की पॉइंट से, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई भी एक सपोज ये मेरा एक कर्व है, ठीक है, तो मैं ये बोलूं कि मुझे एक पॉइंट पता है दैट इज पी व्हिच इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, राइट। तो ये पॉइंट से अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुम्हें पूछूं तो कैसे फाइंड आउट करना, ठीक है।
समझ में आ रहा है सबको? लेकिन प्रीवियस केस में क्या कर रहे थे हम लोग ना, प्रीवियस केस में हम ऐसे कर रहे थे ना, एट पॉइंट पी सपोज ये मेरा कर्व था, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम फाइंड आउट कर रहे थे, तो ये पॉइंट था, ये दिया था तुम्हें कि ये पॉइंट पी में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करो। सो दीज आर टू डिफरेंट केसेस, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, तो इस पे देखो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पूछा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल की इक्वेशन पूछा है, तो नॉर्मल की इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट पता होगा तो आराम से मैं नॉर्मल की स्लोप निकाल सकता हूँ, फिर नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये केस में, ये एग्जांपल पे क्या दिया है ना, राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। कर्व क्या दिया है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, राइट, which passes through the point 1 2, राइट, 1 2 पॉइंट में वो पास करता है। दैट मीन्स अगर ये जो कर्व दिया है मुझे, ये कर्व की अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसे होगा? एक पैराबोला है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला जो है सपोज ये है, ये मेरा वो पैराबोला है। दिस इज y, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, राइट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड एक पॉइंट दिया है, ठीक है। एक पॉइंट सपोज मैं ले लेता हूँ, वो पॉइंट को, हाँ, वो पॉइंट को मैं P ले लेता हूँ, ये पॉइंट P, तो जिसका कोऑर्डिनेट मुझे पता है, दैट इज 1 2। तो ये पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ना, नॉर्मल इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। नॉर्मल जो है, नॉर्मल ये पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है। तो इस पॉइंट से अगर मैं एक नॉर्मल को ड्रॉ करूं, देखो, अगर मैं ये पॉइंट को देके एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, सपोज दिस इज, ओके, है ना। तो ये जो पॉइंट पी मुझे दिया है ना, इस पॉइंट से नॉर्मल पास कर रहा है, ठीक है। एंड कर्व क्या दिया है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y दिया है तुम्हें। तो तुम्हें पूछा है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो कैसे करें? मुझे तो पॉइंट पता है ना, नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल की जो स्लोप है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो फाइंड आउट कर लोगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, ओके, ये पॉइंट को मैं अगर, अच्छा, इस पॉइंट को, ये दूसरा एक पॉइंट में ले लेता हूँ, सपोज दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज क्यू, राइट। तो ये पॉइंट क्यू की कोऑर्डिनेट अगर मैं, मुझे मिल गया, तो आराम से मैं 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्लोप को यूज करके टेंजेंट की स्लोप को निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। पी का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मुझे पता है, अगर क्यू की कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया तो आराम से मैं कर सकता हूँ ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो क्यू की जो कोऑर्डिनेट है उसको मैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेता हूँ। तो ये जो इक्वेशन दिया है ना, एक्स स्क्वायर, कर्व की इक्वेशन दिया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y दिया है। समझ में आ रहा है सबको? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इन दिस केस what are the parametric coordinates? What should you take the parametric coordinates? Can you write in the chat box? Everyone should complete the parametric वाला पोर्शन जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोनिक सेक्शन में पढ़े थे, ठीक है। तो ये जो कर्व दिया है, ये कर्व की इक्वेशन की पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्या ले सकता हूँ मैं? बोलो, चैट बॉक्स में लिखो, क्या ले सकते हैं हम? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या ले सकते हैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में क्या ले सकते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स, लुकिंग टुवर्ड्स योर चैट बॉक्स गाइस, बोलो, पता है किसी को क्या करना है तुम्हें? अरे, ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट को चूज करो जिस कोऑर्डिनेट क्या करना चाहिए, मेरा जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो y को सपोज में, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं, y इज इक्वल टू में टी स्क्वायर ले लूंगा, ठीक है। y इज इक्वल टू अगर मैं टी स्क्वायर ले लिया तो x कितना हो जाएगा फिर? x फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो x स्क्वायर कितना है ना, 4y है, तो 4t स्क्वायर है, तो x हो जाएगा क्या, 2t, ठीक है। तो x हो गया 2t। तो मैं मान लेता हूं भाई, ये जो q की कोऑर्डिनेट है ना, q की जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 2t t स्क्वायर, ठीक है। मैं उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को ले लिया।
अभी देखो मुझे P की भी कोऑर्डिनेट पता है, Q की भी कोऑर्डिनेट पता है, तो बाय यूजिंग द 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्लोप मैं आराम से ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे फाइंड आउट करना है, यूज करो। तो क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, बोलो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, मुझे ऑलरेडी क्या पता है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P फाइंड आउट करना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P फाइंड आउट करना है ना, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट Q ऑल्सो। ठीक है, इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट Q ऑल्सो, राइट। तो पहले तो मैं क्या करूं, अगर मैं स्लोप निकाल दूं, ये लाइन जो है ब्लू वाला लाइन, ये ब्लू वाला लाइन के अगर मैं स्लोप को फाइंड आउट करूं तो क्या हो जाएगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे स्लोप। क्या दिया है, स्लो इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूं, dy बाई dx निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा ना, 2x इज इक्वल टू 4 dy बाई dx। तो स्लोप मुझे क्या मिलेगा ना, dy बाई dx कितना मिलेगा ना, dy बाई dx आई गॉट दैट इज व्हाट, x अपन 2। सो ये मिल गया मुझे dy बाई dx, x अपन 2, है ना। तो x में क्या लिया हूं, x में लिया क्या हूं ना, x को क्या लिया हूं ना 2t। तो स्लोप कितना हो जाएगा एट पॉइंट Q, है ना, एट पॉइंट Q जो लाइन की इक्वेशन है उसका स्लोप क्या हो जाएगा एट पॉइंट Q ना, 2t, टी स्क्वायर को अगर मैं पुट कर दूं 2t बाई 2 हो जाएगा, t, है ना। तो मुझे क्या मिला, dy बाई dx, है ना, इज इक्वल टू t मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये क्या है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया मुझे। ठीक है, dy बाई dx इज इक्वल टू t आई गॉट, राइट। तो ये पॉइंट अगर मुझे t की वैल्यू मिल गया ना, फिर t की वैल्यू अगर मिल जाएगा ना, फिर काम पता इक्वेशन में आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1/t हो जाएगा। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट t मिला है इसमें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1/t हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को हम आराम से अभी फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड आउट करोगे, पासिंग थ्रू द पॉइंट व्हाट, passing through the point this 2t t square and having the slope what -1/t। तो यहां से देखो मैं क्या करूं ना, देखो 2 पॉइंट फॉर्म को लेके एक बार स्लोप को निकालूं, ठीक है, और एक बार क्या करूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की फाइंड आउट करूं। ठीक है, चलो देखो कैसे करना है मुझे। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट y माइनस 2t t स्क्वायर, है ना, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू -1/t इंटू x माइनस x1 दैट इज 2t। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो अभी, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, ty माइनस टी क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2t, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ना, 2y माइनस 2y प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y प्लस ty प्लस x, और ये हो जाएगा 2t प्लस टी क्यू। ठीक है, तो मैं क्या करूं ना, जो पॉइंट दिया है ये अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ये अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गया तो यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ये नॉर्मल जो है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, वो 1 2 पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये पॉइंट, ये 1 2 पॉइंट में वो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट नॉर्मल इज गोइंग थ्रू, है ना, जो नॉर्मल है पासिंग थ्रू द पॉइंट P व्हिच कोऑर्डिनेट इज 1 2, राइट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है 1 एंड y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल 1 y इज इक्वल 2 को सेटिस्फाई करा दो, ये पॉइंट जो है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो, तो क्या हो जाएगा ये 2t, है ना, 2t प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2t प्लस t क्यूब। तो 2t बोथ साइड से कैंसिल कर दिया, तो t क्यूब कितना मुझे मिला ना, तो t क्या हो गया ना, तो t मुझे मिला है 1। ओके, t मुझे मिल गया दैट इज 1। अच्छा, अगर t मुझे 1 मिला है अभी तो आराम से मैं इजीली मैं स्लोप को फाइंड आउट, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो t अगर मिल गया तो ये पॉइंट जो लिया था मैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट,
जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिया था ये क्या हो जाएगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट क्यू की जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा टी इज इक्वल टू एंड ये हो जाएगा वन। जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा टू होगा, वाई कोऑर्डिनेट वन हो जाएगा, है कि नहीं। तो अभी ये देखो मुझे पी के कोऑर्डिनेट पता है, क्यू की भी कोऑर्डिनेट पता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। एक लाइन है, मेरे पास एक लाइन है विच इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, ठीक है। पी की कोऑर्डिनेट है 1 2 और क्यू की कोऑर्डिनेट है 2 1, राइट। तो ये जो है ये लाइन की इक्वेशन को मैं आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ कि नहीं, बोलो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल है, सपोज ये मेरा नॉर्मल है, वो नॉर्मल को मैं शिफ्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये लाइन की इक्वेशन को मैं आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ कि नहीं, बाय यूजिंग द 2 पॉइंट फॉर्म, है कि नहीं। बाय यूजिंग द 2 पॉइंट फॉर्म आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ना, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इज y, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है ना, y माइनस कोई भी पॉइंट को ले लो, y-1 इज इक्वल टू स्लोप क्या हो जाएगा ना, स्लोप हो जाएगा 2-1, दैट इज 1/1 - 2, है ना, -1, तो स्लोप हो गया -1, ठीक है। लाइन की स्लोप हो गया -1 इंटू एक्स माइनस, ठीक है। अभी आराम से तुम, ये हो गया नॉर्मल की इक्वेशन, क्या हो गया, ये तो हो गया ना, y-1 इज इक्वल टू -x+2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा स्लोप, जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा दैट इज y प्लस एक्स -1 -2 दैट -3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो 2 पॉइंट फॉर्म को यूज करके मैं यहाँ पे क्या किया ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड आउट कर दिया। बोलो चैट बॉक्स में ये क्लियर है सबको, उदय, महक, कौशिक, इट्स क्लियर टू ऑल, गिव मी अ थम्स अप एवरीवन अगर ये सबको समझ में आ गया। बोलो बोलो, इज इट क्लियर टू ऑल, गिव मी अ थम्स अप एवरीवन। अगर कोई डाउट है तो पूछो, यू हैव एनी डाउट। देखो क्या किया मैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन अगर आ गया तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो क्या होता है ना, यहाँ पे पूछा था मुझे, एक कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, राइट, व्हिच इज पासिंग एंड नॉर्मल जो है, नॉर्मल की इक्वेशन तुम्हें पूछा है एंड जो नॉर्मल है दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, ठीक है। तो मैं ये सिंगल इंफॉर्मेशन को लेकर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को डिराइव नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं पॉइंट क्यू को एज्यूम किया और क्यू की कोऑर्डिनेट को मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के हिसाब से चूज किया, ठीक है। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में क्या लिया, यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्यों लिया, मतलब क्योंकि इट शुड बी सैटिस्फाइंग। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट लोगे तुम वो पॉइंट जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर x इज इक्वल टू टी पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 4t²। राइट हैंड साइड में अगर y इज इक्वल टू t² पुट कर दूं तो ये राइट हैंड साइड भी हो जाएगा क्या, 4t²। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को चूज किया। तुम बोलोगे कि सर अगर यहाँ पे इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा इक्वेशन था, तो आराम से आपने क्या किए ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को चूज कर लिया। अगर कुछ डिफिकल्ट इक्वेशन दिया होगा कर्व की, अगर कुछ डिफिकल्ट कर्व दिया होगा तो वो केस में हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को सर कैसे लेंगे वो मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या सबको। देखो क्या किया हूं मैं, क्या इसमें पॉइंट मुझे मिल लिया हूं मैं, पॉइंट को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिया हूं 2t² फिर से मैं स्लोप फाइंड आउट किया, टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट किया दैट इज t, और नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल की स्लोप हो गया -1/t। तो अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड आउट किया मैं कैसे, बाय यूजिंग द स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट क्या है ना, t², 2t² 2t² को पास कर रहा है वो नॉर्मल एंड हैविंग द स्लोप -1/t। तो ये इक्वेशन यहाँ से मुझे t का वैल्यू मिल गया दैट इज 1। तो t के वैल्यू जहाँ पे मिल गया तुम्हें तो आराम से तुम स्लोप ऑफ सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को डिराइव कर सकते हो, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इफ यस गिव मी थम्स अप, अगर डाउट है तो पूछो उदय। या क्लियर, शैल आई मूव टू द नेक्स्ट, बोलो कौशिक, मनीष, ठीक है।
Let's move now. Parametric coordinates. How we can find the parametric coordinate, right? देखो यहाँ पे तुम्हारे स्क्रीन पे कुछ इक्वेशन है, इक्वेशन कर्व कर्व की इक्वेशन है, और ये सारे कर्व की जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तुम पूछोगे कि सर मुझे याद रखना चाहिए क्या, ये सारे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स को याद रखना चाहिए और इक्वेशन को भी याद रखना चाहिए? नो, नॉट नॉट एट ऑल, ठीक है। इसके लिए ना मैं एक तुम्हें ट्रिक बताने वाला हूं, तो कैसे एक्चुअली पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिया है क्या, x⁻²/3 फास्ट वाला कर्व को अगर मैं ले लूं, x⁻² प्लस y⁻², इज इक्वल टू a⁻², राइट। x⁻² प्लस y⁻² इज इक्वल टू a⁻²। तो पहले तो मुझे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को जैसे फाइंड आउट करना है ना, पहले मुझे क्या करना चाहिए, ये जो राइट हैंड साइड में है ना, राइट हैंड साइड, उसको मैं 1 बना दूं। क्यों 1 बना दूं? क्योंकि एक इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, cos थीटा की स्क्वायर प्लस साइन थीटा की स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मेट में, ये इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाने के लिए मैं a⁻²/3 को दोनों साइड में मैं डिवाइड कर दूं। अभी क्या करेंगे ना, दोनों साइड में a⁻² को डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा ना, x⁻² डिवाइडेड बाई a⁻² प्लस y⁻² डिवाइडेड बाई a⁻², विच इज इक्वल टू 1, राइट, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों अभी मैं उसको ऐसे फॉर्मेट में ले सकता हूँ क्या, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारे पास, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एक इक्वेशन है, दैट इज व्हाट, x⁻² अपन a⁻², ओके, प्लस y⁻² अपन a⁻², है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है और राइट हैंड साइड में 1 है, तो ये दोनों इक्वेशन को अभी मैं कंपेयर कर सकता हूँ क्या, दोनों इक्वेशन को अभी मैं आराम से कंपेयर कर सकता हूँ क्या? ओके, चलो और एक स्टेप ले लेते हैं ना, और एक स्टेप कर लेते हैं। क्या हो जाएगा अगर मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x⁻1/3 डिवाइडेड बाई a⁻1/3 होल टू द पावर 2 प्लस y⁻1/3 डिवाइडेड बाई a⁻1/3 की स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1। ऐसे लिख सकते हैं। अभी दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर कर सकता हूँ, अभी दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि दोनों, यस। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया ना, x⁻1/3 अपन a⁻1/3 विच इज इक्वल टू, मुझे क्या मिला, cos थीटा, ठीक है। तो अगर दोनों साइड में ये इक्वेशन की, दोनों साइड में अगर मैं क्यूब ले लूं, ये इक्वेशन की दोनों साइड में अगर मैं क्यूब ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा ना, x/a इज इक्वल टू cos क्यूब थीटा, ये सुनो, x/a इज इक्वल टू cos क्यूब थीटा। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया ना, a cos क्यूब थीटा, x मिला क्या मुझे ना, a cos क्यूब थीटा, राइट। y क्या मिलेगा मुझे ना, सिमिलरली मुझे y⁻1/3, दोनों, ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, सपोज दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज माय इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर करूं, तो मुझे x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा मिला। तो y/1/3 अपन a⁻1/3 इज इक्वल टू साइन थीटा यहां से मिला मुझे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा ना, दोनों साइड में अगर मैं क्यूब कर दूं, मुझे क्या मिलेगा ना, y/a इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, राइट। y कोऑर्डिनेट मुझे कितना मिला ना, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, राइट। तो x कोऑर्डिनेट क्या मिला है ना, a cos क्यूब थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या मिला है ना, a साइन क्यूब थीटा। तो इस तरीके से हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को आराम से सारे इक्वेशन का फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? है समझ में, है कि नहीं? तो इस टाइप से हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो a इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट क्या दिया है, दैट इज a cos क्यूब थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या मिला है तुम्हें, a sin क्यूब थीटा, देखो, ठीक है, यही तो मिला है मुझे। तो सिमिलरली ये सारे इक्वेशंस के लिए, है ना, सारे इक्वेशन के लिए तुम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे √x प्लस √y इज इक्वल टू √a, तो दोनों साइड में √a को डिवाइड कर दो, ठीक है, दोनों साइड में √a को डिवाइड कर दो, और यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के साथ कंपेयर करो। यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें, x इज इक्वल टू cos, जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो क्या दिया है, √x प्लस √y इज इक्वल टू √a। दोनों साइड में अगर मैं √a को डिवाइड करूं, मुझे मेरा इक्वेशन क्या है ना, cos थीटा की स्क्वायर प्लस साइन थीटा की स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो दोनों साइड में अगर मैं रूट ए को डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा ना, रूट ऑफ एक्स अपन ए प्लस रूट ऑफ वाई अपन ए इज इक्वल टू 1। राइट, समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं? तो अभी मैं कंपेयर कर सकता हूं क्या, लेकिन मेरे पास है क्या, मेरे पास क्या है, मेरे पास है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस टाइप से मुझे एक इक्वेशन चाहिए, इसके लिए मुझे एक इक्वेशन चाहिए, तो क्या करना चाहिए मुझे, कैसे कंपेयर करूं दोनों साइड को, मैं कैसे दोनों ये दोनों इक्वेशन को मैं कैसे कंपेयर करूं, 1 2 को कंपेयर कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं कि नहीं लोग? तो मैं ये ले सकता हूँ ना, रूट अंडर रूट ऑफ एक्स अपन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा ले लूंगा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स अपन ए को मैं कॉस स्क्वायर थीटा ले लूंगा। तो अगर दोनों साइड में मैं स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा ना, एक्स अपन ए इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा। तो एक्स की कोऑर्डिनेट क्या बन गया ना, ए कॉस की पावर 4 थीटा। सिमिलरली मैं वाई कोऑर्डिनेट को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, जैसे अंडर रूट ऑफ वाई अपन ए इज इक्वल टू मैं ले लिया साइन स्क्वायर थीटा। दोनों साइड में अगर मैं स्क्वायर स्क्वायर कर दूं तो मुझे मिलेगा वाई अपन ए इज इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा ना, ए साइन की पावर 4 थीटा। क्लियर? तो इस टाइप से हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को जो कोई भी इक्वेशन हो तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो x इज इक्वल टू एस ए कॉस की पावर 4 थीटा एंड y कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है हमें, a इज इक्वल टू ए साइन की पावर 4। राइट, तो इस टाइप से तुम सारे इक्वेशन की पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हो। इसको तुम खुद से ट्राई करो, है ना, x टू द पावर n अपन a टू द पावर n प्लस y टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज इक्वल टू 1। राइट, ठीक है। तो इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को अगर तुम फाइंड आउट करके बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस में, तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा ना, a cos की पावर 2/n थीटा एंड y कोऑर्डिनेट मुझे मिलेगा a इंटू साइन की पावर 2/n थीटा। सिमिलरली ये इक्वेशन की फाइंड आउट कर सकते हो। ये इक्वेशन ये तो पता है ना, लास्ट वाला y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो आराम से में इजी इक्वेशन है, तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर ले लो, y इज इक्वल टू टी क्यूब ले लो, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। समझ में आ रहा सबको? ओके, डन। चलो ये था तुम्हारा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के बारे में कॉन्सेप्ट, और मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क की तरफ दे रहा हूं। दिस इज योर होमवर्क, प्लीज नोट इट डाउन और यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस। Try this question at your home or after the class at your room. Try this question and come to the class with the answer. Right? So in the next class also we'll discuss the solution of this question. ठीक है? तो हमारा जो पोर्शन बचा हुआ है that is angle between two curves and orthogonal curves किसको कहेंगे, है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। That's all for today's class. Thank you. Bye bye. Take care.